Students, today we will start with the new topic ecosystem. ठीक है. So ecosystem is a functional unit of nature. As you all know that ecosystem is the unit of nature where living organisms interact among themselves. The living organisms which are staying in the nature, they interact among themselves, which is called what? Ecosystem. तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक दूसरे के साथ कैसे मेल भाव से रहते हैं और इनका इंटरेक्शन कैसा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इकोसिस्टम. एंड द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय A.G. Tansley in 1935. Okay, so entire biosphere, the whole world is called the ecosystem, is taken into consideration that the whole world is the ecosystem, comprising what? Many local ecosystem, like you have a pond ecosystem, a forest ecosystem, and an ocean ecosystem. All these components of the earth are considered as what? Ecosystem. Like pond, just now I told. Okay, so what is the ecosystem? This is an interaction between the living organisms. एक दूसरे के साथ कैसे मेल जोल के रहते हैं, इंटरेक्शन कैसा है, that is called what? Ecosystem. Now we will discuss about ecosystem structure and function. In the ecosystem, which is an interactive system, what are the interactive components? The biotic and the abiotic components are interacting components. तो ये दोनों बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स एक साथ इंटरैक्ट करेंगे एंड थ्रू दीज दे विल एक्सचेंज व्हाट? एनर्जी एंड द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स. क्या एक्सचेंज, क्या इंटरैक्शन? इंटरैक्शन इन द सेंस दे विल एक्सचेंज एनर्जी फ्लो एंड द न्यूट्रिएंट फ्लो. ओके, so when we see the ecosystem, there are two types: natural ecosystem and artificial ecosystem. What is natural ecosystem? When they maintain their interaction and operating systems by themselves. मतलब अभी यहाँ पर ह्यूमन बीइंग का इस नेचुरल इकोसिस्टम में कोई इंटरफियरेंस नहीं है, लेकिन अगर आर्टिफिशियल है तो ह्यूमन इंटरफियरेंस से ही होगा. So you can see the natural ecosystem which is not interfered by man are of two types: terrestrial and aquatic. ठीक है. अब टेरेस्ट्रियल क्या है? लैंड इकोसिस्टम. लैंड में क्या क्या है? फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड. सो दिस आर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. और एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या है? फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर. फ्रेश वाटर में क्या है? पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम्स. एंड सॉल्ट वाटर क्या है? मेरीन, वेटलैंड्स एंड एस्टुअरीज. ओके, सो फ्रेश वाटर मतलब पॉन्ड, पोखर, लेक्स है, स्ट्रीम्स है, हाँ, रिवर्स है. सॉल्ट वाटर है मेरीन, ओशियन वाटर, वेटलैंड्स का, और एस्टुअरीज का पानी भी. तो ये सब जो अभी हम लोगों ने देखा है, दैट इज नेचुरल इकोसिस्टम कंप्राइजेज ऑफ टू टाइप्स: टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक. लैंड में और पानी में क्या क्या है, जमीन में और पानी में क्या क्या इकोसिस्टम हो सकता है, इसका जिस्ट है इधर. Okay, or artificial ecosystem, this is interpreted and interacted by man. This is manipulated by man. This is maintained by man. So this is a cropland or an aquarium which is all maintained by what? Man. So this is an ecosystem. So what are the two main types of ecosystem? Natural ecosystem and artificial ecosystem. Now we will discuss about the components of ecosystem. What are the components basically? क्या क्या हो सकता है ecosystem? Abiotic components and biotic components. अभी क्या बात किया था कि interaction between the organism is called what? Ecosystem. So biotic and abiotic components एक साथ रह के एकजुट होके क्या रिएक्शन दे रहा है, interaction कैसा है, that is what? The components. Okay, that is the ecosystem. Interaction क्या है? Ecosystem है, और किसके साथ किसका इंटरैक्शन? द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरैक्शन, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इकोसिस्टम. सो व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स. एबायोटिक आर द नॉन लिविंग वन. यू कैन सी अबायोटिक, दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ लाइफ.
So abiotic components are non-living components. What are these? Air, water, temperature, solar radiation, soil, like this. And for the biotic components, what we have? The living organisms. Like we have what? Producers, we have consumers, we have decomposers. Right? मतलब क्या है? abiotic components में जान नहीं है तो एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है, लाइक दिस. एंड बायोटिक components मतलब लाइफ. सो दिस आर व्हाट? प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स, कंज्यूमर्स जो खाने वाले हैं, एंड डिकम्पोजर्स जो सड़ाने वाले हैं. तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर. खाना अपने आप बना नहीं सकता, सो दे आर कॉल्ड व्हाट? हेटेरोट्रॉप्स. एंड व्हाट आर द प्रोड्यूसर? दे आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे कैन prepare their own food by themselves, right? So heterotrophs and autotrophs. Heterotrophs are the consumers. So what we are studying now? We are studying the components of ecosystem. What are these two? Abiotic and biotic. Next is structure and function of ecosystem. So this interaction of the biotic and abiotic components results in what? इसका result क्या होगा? फल क्या है इसका? It will result in the physical structure that is calculated by the characteristics of each type of ecosystem. So जो interaction है उसका result क्या है? Result है एक structure जो कैसे हम लोगों को मिलेगा? By studying the characteristic of each ecosystem. ठीक है, तो structure कैसा है इसको जानना पड़ेगा. इसके लिए स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम क्या क्या है इसको जानना है. तो क्या है? दैट इज स्पीशीज कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन. अब स्पीशीज कॉम्पोजिशन क्या है? दिस इज द आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम. एक जगह पर स्पीशीज कितना है और क्या क्या है उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, पहचानना है, राइट? तो इससे क्या मिलेगा हम लोग को? स्पीशीज कंपोजिशन क्या क्या है उसमें, कौन सा स्पीशीज है ये मिलेगा. और स्ट्रैटिफिकेशन मतलब लेयर वाइज सजाना, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल्स. वर्टिकली अलग अलग स्पीशीज को अलग अलग लेवल में सजाने का प्रोसेस क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन. वर्टिकली सजाएंगे सीधा, जैसे कि जो ट्रीज है वो सबसे ऊपर रहेगा फॉरेस्ट में, सबसे ऊपर, फिर श्रब्स सेकेंड में, हर्ब्स एंड ग्रासेस एकदम थर्ड लेवल में. साइज वाइज देखो, ट्रीज सबसे बड़ा है तो ऊपर लेवल में, बीच में क्या होगा? श्रब्स मतलब छोटे प्लांट्स जो पौधे हैं, फिर हर्ब्स सबसे छोटे जैसे ग्रासेस, दे विल ऑक्युपाई द थर्ड लेयर. सो दिस आर द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज. दे विल ऑक्युपाई व्हाट? डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल का जगह इनको मिलेगा. नेक्स्ट वी कम टू द फंक्शनल एस्पेक्ट्स. अगर फंक्शनल एस्पेक्ट्स देखेंगे इकोसिस्टम का तो 4 है इसमें: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. ओके, सो दिस आर व्हाट? दिस आर द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. मतलब इकोसिस्टम कैसे चलता है, किस प्रोसेस से, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दिस 4, दैट इज प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड nutrient cycling. These are called what? These are the functional aspects. So aquatic ecosystem कैसा है? Next is the functional aspects of the ecosystem. Okay, so what are the important functional aspects? ecosystem में क्या क्या function देखा जा सकता है? प्रोडक्टिविटी है, डिकम्पोजिशन है, एनर्जी फ्लो है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. ये जो 4 एस्पेक्ट्स है ये लगातार इकोसिस्टम को मेंटेन करेगा. ओके, सो क्या क्या है ये 4? प्रोडक्टिविटी है, डिकम्पोजिशन भी है, एनर्जी का फ्लो भी होगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी चलेगा, तब जाके इकोसिस्टम ना बैलेंस में रहेगा. ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे? पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं. पॉन्ड इकोसिस्टम इज एक्वाटिक इकोसिस्टम है, तो ये कैसे चलता है, क्या क्या बायोटिक कंपोनेंट्स है, क्या क्या बायोटिक कंपोनेंट्स है, वो देख लेते हैं. सो पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड क्या है? एक शैलो वाटर का जगह. जब बहुत डीप पानी, गहरा पानी नहीं रहता है, शैलो वाटर बॉडी, थोड़ा सा कम पानी जहाँ पर है, आसपास गांव में भी आप लोगों को पोखर दिखता होगा. सो दैट इज कॉल्ड द पॉन्ड वेयर वी हैव लिटिल वाटर देयर and which will contain all the basic structural and functional aspects of ecosystem. पॉन्ड में जनरली सभी एस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स भी और फंक्शनल एस्पेक्ट्स भी.
तो अभी बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या है उसको देखते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग में वाटर है, डिजॉल्व ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर भी है, मिट्टी भी होगा, सनलाइट भी होगा, टेम्परेचर का भी फ्लक्चुएशंस होगा, उधर क्लाइमेट का कंडीशंस भी उसके ऊपर इफेक्ट करेगा कि कैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है पॉन्ड के आसपास एंड पॉन्ड के अंदर कैसे जी रहे हैं। सो ऑल दिस व्हाट वी हैव सीन हियर इंक्लूडिंग द क्लाइमेट विच इज़ इन द सराउंडिंग प्लेस, वो भी कंट्रोल करेगा इकोसिस्टम को। ओके, सो व्हाट आर दिस एबायोटिक कंपोनेंट्स? पानी है, डिजॉल्व इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर है, सोलर इनपुट है, सॉइल है, टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द प्लेस ऑल्सो। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग कंपोनेंट्स क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स, जैसे कि एल्गी विच आर फ्लोटिंग, ऊपर तैरता भी होगा, नीचे डूबा हुआ होगा या साइड में भी ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। सो दिस आर एल्गी विच आर फाइटोप्लैंक्टन्स। देन जू प्लैंक्टन्स जो कंज्यूमर्स है, मतलब इनको खाने वाले, फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले या प्लांट्स को खाने वाले जो है जू प्लैंक्टन्स कंज्यूमर्स। डिकम्पोजर्स भी होंगे जैसे बैक्टीरिया एंड फंगी। तो वो किए क्या डिकम्पोज करके क्या सड़ाएगा? They will decompose the dead organic matters and release them back. फिर से डिकम्पोज करा के फिर से वापस यूज़ करने के लिए रिलीज़ कर देगा ये डिकम्पोजर्स जो है। ठीक है, तो ये जो बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स है पॉन्ड्स का, ये एकदम एक बेसिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है जिसको देखने से आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या फीचर्स है एक इकोसिस्टम में। कंज्यूमर्स का काम क्या है? जैसे जू प्लैंक्टन कंज्यूमर है तो ये इनको खाएगा। कंज्यूमर्स आर हु ईट अदर्स, तो ये जू प्लैंक्टन्स है। ये फ्रीली स्विम भी कर सकता है या फिर नीचे भी रह सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या किसके लिए पढ़ रहे हैं? ताकि इकोसिस्टम के बारे में और थोड़ा सा अच्छे से जानकारी हम लोगों को मिल जाए। Next, we have the topic productivity. Okay, so this is also a very important part of the chapter, productivity. Okay, so जब भी जो सनलाइट जो है कंटिन्यूस एक जगह पर पड़ता है, कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी चाहिए होगा इकोसिस्टम को अच्छी तरीके से बैलेंस में रहने के लिए। क्या चाहिए होगा? सोलर एनर्जी। कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी is the basic requirement of any ecosystem to flourish, maintain its function and to sustain. तो क्या चाहिए होगा? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट constant input of solar energy. ओके, लेकिन सोलर एनर्जी क्यों चाहिए? ताकि जो प्रोड्यूसर्स है ये जो अपने बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहे हैं इसका प्रोडक्शन रेट बढ़े। ओके, सो इसलिए कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। क्या प्रोडक्टिविटी? एनर्जी का प्रोडक्शन। हु विल डू दिस? द ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा। सोलर एनर्जी से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। तो इसके लिए कांस्टेंट सोलर एनर्जी का इनपुट चाहिए होगा। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। इसको याद रखना है आप लोगों को कि सोलर एनर्जी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो इकोसिस्टम सस्टेन करेगा ही नहीं। सो अभी एक डेफिनेशन के ऊपर ध्यान देना है। अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड ड्यू टू फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड व्हाट? प्राइमरी प्रोडक्शन, मेजर्ड इन ग्राम पर मीटर स्क्वायर और किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन में देखते हैं। अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर, कितना बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट एरिया, दैट इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस पर मीटर स्क्वायर, पर यूनिट एरिया में ओवर अ टाइम पीरियड, कुछ टाइम के दौरान, सपोज पर ईयर। ओके, सो पर ईयर 1 मीटर स्क्वायर जगह में कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्राइमरी productivity, primary production. Okay, so this is the rate, this rate of biomass production is called what? Primary productivity or productivity. मतलब क्या बोलना चाहते हैं कि जो जितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड होगा पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स व्हाट? द प्रोडक्टिविटी.
ठीक है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है एक एरिया में, प्राइमरी प्रोडक्शन रेट पर टाइम में जब देखेंगे तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो दैट इज अ प्रोडक्शन, सो प्रोडक्टिविटी. Okay, so primary productivity is what? If you want to define the primary productivity, so what will you define? It is the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a period of time by the plants during what? During photosynthesis. Okay, so it can be measured in terms of the weight. That is why I have given what? Gram. और इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज वाई आई हैव गिवन व्हाट? किलो कैलोरीज. दोनों में मेजर कर सकते हैं. सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. वन इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अनदर इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सो व्हाट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? दिस इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान, दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल. ओके, टोटल. नाउ वी कम टू द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द हेटेरोट्रॉप्स. हेटेरोट्रॉप्स क्या खाएंगे, उसके लिए क्या रहेगा बचा हुआ? लाइक द herbivores, the decomposers, what they will eat from the plants, what they will get, the biomass that they will get, this available biomass is the net primary productivity. But what is available? What is left? The energy left in the producers after utilization during respiration. सांस लेने का process जो है, so that is the process which helps in breaking down the food to release what energy. So इसी दौरान जो process होगा, that is respiration में जितना energy चाहिए चला जाएगा, तो बाकी का जो रह जाएगा, that is the NPP, net primary productivity. Right. So gross primary productivity and what? Net primary productivity. What is gross? The total amount of organic matter produced during photosynthesis is gross. And what is net? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से रेस्पिरेशन का जो लॉस हुआ है उसको माइनस कर देना है. सो व्हाट वी विल गेट? द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. रेस्पिरेशन लॉस को निकाल देना है. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड व्हाट? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. मतलब जो अवेलेबल होगा हेटेरोट्रॉप्स को आफ्टर द यूज ऑफ द एनर्जी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस. ठीक है. नेक्स्ट वी कम टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. क्या क्या फैक्टर्स है जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है? जैसे प्लांट स्पीसीज, ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी प्राइमरी में कौन करता है? मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन क्या हो रहा है? प्लांट से ही हो रहा है ना, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस. सो द प्लांट स्पीशीज इन्फ्लुएंस. उसके साथ साथ वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन अफेक्टिंग द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, विच आर व्हाट? लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, रेनफॉल, लाइक दिस. सो हाउ डू लाइट अफेक्ट? सनलाइट, यू नो वेरी वेल दैट सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. लाइट थोड़ा सा भी कम होगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा. जहाँ पर मैक्सिमम लाइट है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लाइट में भी नहीं होगा, एक ऑप्टिमम लाइट का ज़रूरत होगा जब ये प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा. और पोल्स में तो मिनिमम लाइट है, तो मिनिमम लाइट होने से प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो हो जाएगा. ट्रॉपिक्स में देखो मैक्सिमम लाइट है एंड पोल्स में कितना है? मिनिमम लाइट है. सो कंपैरेटिवली अगर देखेंगे तो लो ऑन द पोल्स, प्रोडक्टिविटी इज लो ऑन द पोल्स बिकॉज सनलाइट ज़्यादा पहुंचता नहीं. लेकिन बहुत तेज़ सनलाइट में, बहुत धूप में भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता है ज़्यादा. ये आपको 11 का क्लास में जो चैप्टर था उसमें आप लोगों को याद होगा. तो ऑप्टिमम जो सनलाइट जितना चाहिए मैक्सिमम वो मिल जाए तो फोटोसिंथेसिस होगा. मिनिमम मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस काफ़ी कम होगा, तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली लो ही होगा. देन वी हैव द न्यूट्रिएंट्स. जितना भी देखो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए होगा वो अगर अच्छे से मिलेगा नहीं. दिस आर ऑल एसेंशियल थिंग्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स, फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. सो न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. सो ये चाहिए होगा. अगर आप टेम्परेचर की बात करेंगे
तो टेम्परेचर ऑल्सो रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम, ये आप लोगों को मालूम है, हाई टेम्परेचर एंजाइम्स का एक्टिविटी जो है रिड्यूस कर देता है. सो ऑप्टिमम टेम्परेचर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम, नहीं तो बाकी का काम नहीं होगा. सो टेम्परेचर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन प्रोडक्टिविटी. बारिश का बात करेंगे, सो इट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, लेकिन बहुत कम पानी रह जाएगा, स्केर्सिटी ऑफ वाटर होगा तो प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा. डेजर्ट में लोएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दिखाई देगा बिकॉज द सॉइल इज डेफिशिएंट ऑफ मॉइस्चर, ये तो जनरली हम लोग जानते ही है. एंड ऑल्सो नंबर 4 पॉइंट, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑफ प्लांट्स, जैसे C3 एंड C4 प्लांट्स आप लोगों को याद होगा कि C3 प्लांट्स आर लेस प्रोडक्टिव एंड C4 प्लांट्स आर मोर प्रोडक्टिव because they have the efficiency to trap what? Sunlight. So C4 plants are more productive than the C3 plants. तो ये जो पॉइंट्स हम लोगों ने अभी देखा है, these are the factors affecting primary productivity. In a way you can say they affect the rate of photosynthesis. Correct. Next we come to the secondary productivity, which is what? The rate of assimilation and formation of organic matter by the consumers. Consumers कितना assimilate करता है और organic matter कितना form हो रहा है, that is called what? The secondary productivity. ठीक है, और ये primary productivity से काफ़ी छोटा होगा और इसका जो effect है ट्रॉफिक लेवल में जितना ऊपर जाएंगे उतना कमता हुआ दिखाई देगा. ठीक है, ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ईच लेवल इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड द ट्रॉफिक लेवल. तो हर एक लेवल के हिसाब से अगर जाएंगे ऊपर तक तो इट टेंड टू डिक्रीज. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है ये थोड़ा थोड़ा करके कम होता हुआ दिखाई देता है क्योंकि ये कंज्यूमर्स के थ्रू हो रहा है और ये काफ़ी कम है प्रोडक्टिविटी जो. ओके, and next we come to decomposition. Next we come to decomposition. अब ये क्या है? This is the process of breaking down of complex organic matter. Complex organic matter को inorganic substance में change करने का जो process है, this is called what? Decomposition. Dead body सड़ जाता है, that is breaking down of complex organic matter, and the inorganic substances are formed. Okay. So inorganic substances क्या क्या? पानी, carbon dioxide, okay, like this type of things will be formed after the decomposition of the organic matter. And which is the raw material? Detritus, मतलब dead bodies. Detritus ही decompose हो जाएगा by the bacteria and fungi और उसके बाद क्या मिलेगा? Inorganic substances. Okay. So this is decomposition. So by far we have discussed about primary productivity, secondary productivity and decomposition. अभी decomposition कैसे होता है उसका steps के बारे में बताएंगे. So you can see the steps of decomposition now. The first step of decomposition is fragmentation, where there is breakdown of detritus into smaller particles by detritivores. ठीक है, कौन इसको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेगा? डेट्रिटस को डेट्रिटिवोर्स. ओके, दोज हु फीड ऑन द डेट्रिटस आर कॉल्ड व्हाट? डेट्रिटिवोर्स. तो पहला स्टेप है फ्रेगमेंटेशन, जहां पर डेट्रिटस को छोटे टुकड़ों में या पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाएगा बाय द डेट्रिटिवोर्स. ठीक है, नंबर 2 स्टेप है लीचिंग, विच इज द प्रोसेस बाय विच the water soluble inorganic nutrients go down into the soil. मिट्टी के नीचे धीरे 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 सिपिंग करता हुआ नीचे चला जाएगा what? Inorganic nutrients which are water soluble, right? ठीक है ना. तो फ्रैगमेंटेशन, उसके बाद क्या होगा? लीचिंग, द प्रोसेस बाय विच वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल. धीरे धीरे मिट्टी के नीचे चला जाएगा. नेक्स्ट वी कम टू थर्ड नंबर स्टेप्स, कैटाबॉलिज्म, which is degradation of detritus into simple organic matter. detritus को धीरे 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 डिग्रेड करके क्या फॉर्म हो जाएगा? ऑर्गेनिक मैटर by the action of who? by the action of bacteria and fungi. उसके बाद उसका फर्दर चेंजेस होगा इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर. पहले तो कॉम्प्लेक्स मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, फिर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा इनटू व्हाट?
inorganic matter. Okay, so this is what catabolism done by the bacteria and fungi. Okay, next is humification, where there is formation of humus. अब ह्यूमस क्या है? डार्क कलर पार्टिकल्स सॉइल का जब देखते हैं ऊपर काला काला कुछ सॉइल दिखाई देता है विच इज़ क्लेई टाइप, सॉफ्ट होता है और बहुत ही फर्टाइल होता है, ये ह्यूमस का फॉर्मेशन है. सो प्रोसेस दैट लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस इज कॉल्ड व्हाट? ह्यूमिफिकेशन. ये भी डिकम्पोजिशन का एक स्टेप है. And the last step is mineralization, which is the degradation of humus into inorganic nutrients. अब धीरे धीरे ह्यूमस टूटता हुआ, डिग्रेड करता हुआ जो फॉर्म करेगा, that is the release of inorganic nutrients by the help of microbes. Obviously microbes ही करेगा ये. Degradation of humus मतलब धीरे धीरे ह्यूमस जो है वो टूटता हुआ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में फॉर्म हो जाएगा बाय द माइक्रोबियल एक्शन और बाय द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स. मतलब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो इतना स्टेप्स जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, देन एट लास्ट मिनरलाइजेशन आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. ओके, पहला स्टेप क्या है? फ्रेगमेंटेशन, छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं ये डेट्रिटस. विद लीचिंग इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे मिट्टी के नीचे चला जाता है. फिर कैटाबॉलिज्म है वेयर देयर इज डिग्रेडेशन ऑफ डेट्रिटस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, वो भी और डिग्रेड होकर फिर सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज हो जाते हैं. फिर ह्यूमिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, देन मिनरलाइजेशन, that is degradation of humus by the microbes to form inorganic nutrients. Next, what are the factors affecting rate of decomposition? Rate of decomposition को alter करने वाले factors क्या क्या है? ये देखिए, chemical composition of detritus. Detritus मतलब dead bodies, dead remains जिसके ऊपर बैक्टीरिया एंड फंगी काम करेगा. So this is the chemical composition of detritus which determine the rate of decomposition. ओके, अगर डेट्रिटस लिग्निन एंड काइटिन से भरा हुआ है देन डिकम्पोजिशन विल बी स्लोअर, और अगर नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है देन इट विल बी फास्टर. ठीक है, ऐसा केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस विल कंट्रोल द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन. ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैटर है तो थोड़ा टाइम लगेगा. फिर क्या है? टेम्परेचर है, सॉइल का मॉइस्चर है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है डिकम्पोजिशन को कंट्रोल करने के लिए. जैसे कि बहुत वार्म टेम्परेचर होगा और मॉइस्ट एनवायरनमेंट होगा तो डिकम्पोजिशन काफ़ी ज़्यादा होगा, और अगर लो टेम्परेचर है, ठंडा है, तो डिकम्पोजिशन काफ़ी कम होता है, ख़राब होता है कम. ठीक है, सड़ाने का जो प्रोसेस है ये वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ही ज़्यादा होता है. लेकिन अगर कोल्ड क्लाइमेट है तो वह सड़ाने का जो चीज़ें हैं वो सड़ता नहीं ज़्यादा, और सड़ाने का काम जैसे डिकम्पोजिशन का काम जो है वो थोड़ा स्लोली होता है. ओके, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अप टू दिस मच लाइक द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फ्रॉम द चैप्टर इकोसिस्टम, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द अदर पार्ट ऑफ द चैप्टर इंक्लूडिंग द एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग.